Hello everybody, this is Farha Anwar and welcome to another exciting episode of Queenie Talks. And we have a very special girl today joining us from the batch of 2017 Mrs. Maharashtra. Her name is Swapnali, and in some time we will have a wonderful conversation with her, and she's going to discuss about her life journey, her pageant, the pageant that she came in, how it changed her life, how she has become an overnight celebrity in Kolhapur and around that area. She is doing a lot of appearances and she is being called as a judge in a lot of events. So we will discuss all of this with the beautiful Swapnali. So first, what I'm going to tell you a brief introduction about her. So her name is Swapnali Jagoje. She was crowned Mrs. Maharashtra Griha Lakshmi 2017. So at that time we had a tie-up with Griha Lakshmi magazine where they asked us to choose Mrs. Maharashtra Griha Lakshmi, and that girl was exclusively covered in Griha Lakshmi magazine, which is one of world's leading magazine, Hindi magazine. I think more than 3 generations of us are reading the magazine. Everybody knows it and everybody knows Diamond publication. So it was a very big opportunity for Swapnali also, because she's all over India. People were reading about her all around, and it was one of the main subtitles that she won. She's also the brand ambassador for clothing store Man Mandir House Kolhapur, which is another a very big fashion house in Kolhapur. She has been also an awardee of Sai Samriddhi Puraskar 2019. She has also done her Marathi debut in a music album Dhund. She is also actively participating in various fashion shows, pageant, talent shows as a jury. So this is the brief profile of Swapnali. And before I start, I'm going to just crawl around and see who all have joined us. Okay, so I can see Swati, Yashoda, Pragati, Shweta Patil, Varsha, Nish Karelia, Anjulika, I can see Anjana. There will be few people above also. Swara, Deepika, Ruchita, Yuti, Yashoda, Neha Chauhan, Vibhuti, Swara. Alright, Prachi, I can see a lot of people. Pragati rocks. So thank you so much for joining us, and I'm sure जैसे हर वीक आप लोगों को बड़ा मजा आता है, बड़ा एंजॉय करते हैं आप हमारे साथ. आज का एपिसोड भी आपको बहुत पसंद आएगा, एंड स्वप्नाली से जरूर कुछ ऐसी बातें हैं जो आप लोग सीखेंगे. तो इसी बात के ऊपर मैं भेज रही हूँ स्वप्नाली को रिक्वेस्ट कि वो हमें ज्वाइन कर सके एंड हम उनके साथ बहुत अच्छी प्यारी बातें कर सके. भेज दी है मैंने रिक्वेस्ट, एंड स्वप्नाली आएंगी एंड हमें अपने बारे में कुछ और बताएंगी, कुछ और बातें करेंगी. हाय स्वप्नाली, वेलकम टू क्वीनी टॉक. गुड इवनिंग मैम, वेरी गुड इवनिंग. यू आर लुकिंग एब्सोल्युटली गॉर्जियस. आप बिल्कुल कोल्हापुर की तड़कती भड़कती स्वप्नाली लग रही है आज, बहुत ही प्यारी लग रही है. Thank you so much, ma'am. You are looking so pretty and so gorgeous. You two are looking so pretty. Thank you so much. Thank you so much, स्वप्नाली. अच्छा, हमारी जितनी भी लड़कियां हमारे साथ आई हैं वो जानना चाहती हैं आपका ब्रीफ इंट्रोडक्शन. तो थोड़ा हमें अपने बारे में बता दीजिए कि कैसे आपकी शुरुआत हुई. Yes, I'm स्वप्नाली जगोजे. अभी आपने मेरे बारे में बहुत कुछ यहाँ पे डिस्क्राइब किया. मीन्स इन शॉर्ट आई विल बी टेलिंग. I am a founder at Kidzone Academy, proprietor at Glanswag Creative Concepts. Hello? Yes, proprietor at Glanswag Creative. Yes, proprietor at Glanswag Creative Concepts, and I have won the pageant Diva Mrs. Maharashtra and the title of Diva Mrs. Maharashtra Griha Lakshmi in the year 2017-18. This is shortly about me. I have been working in television since last 5 to 6 years, and in educational field since last 10 years.
And talking about my family, my husband is chartered accountant and international tax consultant. I have one son. He's 14 years old. And I belong to a joint family. That's a brief introduction about me. जी, तो स्वप्नाली, वैसे तो मैं काफी कुछ आपके बारे में जानती हूँ, बट मुझे ये नहीं पता था कि you are also a mother to a teenage boy. एंड आई गेस कोई तो अगर आपको देखेगा तो वो पता नहीं लगा सकता है कि स्वप्नाली जी जो है वो 14 ईयर्स के एक बेटे की मम्मा है. Yes, this is the first show where I have explored this secret about me. Means no one knows about it. Yes, this is the first show. जितने कम लोगों को अच्छा है, मैं एकदम मेरी त्वचा से मेरी उंगली का पता नहीं चलता, उस श्वास को राजी रहने देती हूँ. So I can totally... yes. जी. स्वप्नाली, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि आपको कैसे मिसेस महाराष्ट्र के बारे में पता चला, एंड फिर आपने कैसे डिसाइड किया कि मैं जाना चाहती हूँ इस पैटर्न. Yes, of course. As I told, I'm a television artist. So few years back, जब यहाँ पे दीवा पैजेंट्स का मैं चैनल के साथ काम कर रही थी एक्चुअली, महाराष्ट्र 1. So there I came to know about the pageant. Actually, this pageant was to be telecasted on this channel, and I was working with that channel too for another project. So at that time, I got the news about the pageant, and everyone asked me that you have a dream of going into the pageantry and fashion field and everything. So you must try, and you have to participate this year. So I tried, I participated, and the auditions I gave the auditions in Kolhapur. I was selected, and that's there the journey began. Okay. एंड जो फर्स्ट डे आपका रिहर्सल्स का जब आप आई एंड आपके रिहर्सल्स चालू हुए मिसेस महाराष्ट्र का, तो उसका कोई किस्सा बताइए, उसकी कोई मेमोरी बताइए कि कैसा आपका फर्स्ट एनकाउंटर रहा बाकी गर्ल्स के साथ, अंजना मैम के साथ, काल सर के साथ. यस श्योर. तो इसका अभी जो मैंने टाइटल जीता है ग्रह लक्ष्मी, तो इससे रिलेटेड सब है. जो यहाँ पे लाइट का प्रॉब्लम. यस, कैन यू हियर मी मैम? Yes, we can hear you. So. Yes, I think there is a light problem. I think something happened. But okay. आपकी पर्सनालिटी में से इतनी लाइट निकल रही है कि आप हमें बिल्कुल साफ नजर आ रही है, तो आप घबराइए मत, आप अपनी बात आगे बोलिए. Yes. तो फर्स्ट डे जब मैं वहाँ पे आ रही थी, so I was traveling and we had a task of a Graha Lakshmi magazine that we have to post our pic with a Graha Lakshmi magazine and on the page. मीन्स वहाँ पे हमें पोस्टिंग करना था ग्रह लक्ष्मी मैगजीन लेके हाथ में पेज पे. तो यहाँ पे कोल्हापुर में मैंने बहुत जगह सर्च किया, तो कहीं पे मुझे मैगजीन नहीं मिली. तो पूना में मैं जब आई, तो पूना में उसी दिन मैंने जब ट्रैवल कर रही थी, फर्स्ट डे था ग्रूमिंग सेशन का, और मैं ट्रैवल कर रही थी वहाँ पे जल्दी आना चाहती थी, पर थोड़ा सा मैगजीन ढूंढते मुझे लेट हो गया एंड मुझे नहीं मिला, एंड तक नहीं मिला वो मैगजीन. एंड आई केम अप टू द ग्रूमिंग वेन्यू. वहाँ पे आई तो थोड़ा सा लेट हुआ था, तो फर्स्ट डे ही था. फर्स्ट डे आई वाज लेट एंड वहाँ पे थोड़ा ऐसे हो गया कि सब देख रहे थे ऐसे कि अरे ये लेट क्यों आई एंड ऑल. आई वाज बिट टेंस ऑन दैट डे. तो यहाँ से शुरुआत हुई ग्रूमिंग डे का फर्स्ट डे. जी. एंड जो ग्रूमिंग की जो फर्स्ट डे शुरुआत हुई, आप अंजना मैम से मिली, काल सर से मिली, कैसा एक्सपीरियंस रहा बाकी गर्ल्स से बात करके, उनसे मिलके? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था. मीन्स आई एंजॉयड अ लॉट. फर्स्ट डे थोड़ा सा ये मैगजीन की वजह से मैं टेंस थी, क्योंकि मेरा पोस्टिंग अभी तक नहीं हुआ था एंड एवरीथिंग वाज लाइक लिटिल बिट टेंस एटमॉस्फेयर ऑल अराउंड. मीन्स थोड़ा सा मुझे डर लग रहा था कि अभी कैसे होगा, सबका हो गया एंड ऑल. अंजना मैम से मिली, काल सर से मिली, आपसे मिली, एवरीवन, द गर्ल्स एंड ऑल, सबसे मिली, तो बहुत अच्छा लगा वहाँ पे. एंड यस, फर्स्ट डे आई एंजॉयड अ लॉट. एंड जो ये आप पूरा शहर आप जो 2 शहर, पूना एंड कोल्हापुर, एंड आप मैगजीन आपको नहीं मिल सकती, बट उसके बाद भी आपने मेन टाइटल जीता, ये मैगजीन पकड़ इसका वो आपने जीता ही जीता. साथ ही साथ आपकी फोटोज आए मैगजीन में एंड काफी आपकी तारीफ हुई इस टाइटल को लेके, क्योंकि बड़ा संस्कारी टाइटल है मिसेस ग्रह लक्ष्मी जो आपको मिला.
यस, और इसके बारे में एट द एंड ऑफ द डे क्या हुआ, जब हम वापस आ रहे थे तो मैम ने पूछा कि ऑल हैव डन विद द टास्क, हैव यू ऑल एवरीवन डन विद द टास्क, एंड सबने पोस्टिंग वगैरह सब कर दिया. देन आई वाज स्टैंडिंग क्वाइट, एकदम ऐसे चुपचाप खड़ी थी, मैंने कुछ नहीं, हाँ या ना कुछ नहीं बोला. लेकिन कुछ लड़कियां ऐसी थी जिनको मालूम था, दे वर नोइंग दैट एक्चुअली दे वर नोइंग कि मेरे पास मैगजीन नहीं है, मुझे नहीं मिली है, और मैंने पोस्टिंग भी नहीं किया है. तो पीछे से किसी ने बोल दिया कि मैम ये स्वप्नाली है ना, इसका अभी तक नहीं हुआ है मैगजीन का, उसने पोस्टिंग नहीं किया है. आई वॉज लाइक शॉक. मैंने कहा अरे व्हाई यू टोल्ड दिस. इट्स ओके. पता नहीं किसने किया, पर किसी ने फट से पीछे से बोल दिया ऐसे ऐसे हुआ है. तो मैम आई मेरे पास, मैम ने कहा कि ये स्वप्नाली गलत है और आपको पोस्टिंग तो करना ही है, मैगजीन का टाइटल मीन्स अच्छी अपॉर्चुनिटी है तो आपको पोस्टिंग तो करना ही है. देन आई सेड ओके ओके मैम, मैंने वेंट, बाहर आई ग्रूमिंग के बाद, और बाहर सेशन खत्म हुआ. एक आउटफिट भी इतना सिंपल था, सबके पोस्ट मैंने देखे तो वहां पे सबने लाइक गृह लक्ष्मी जिस टाइटल जैसा है वैसे सबने तैयारी की थी. मीन्स ऑल दे वर रेडी विद द साड़ी ड्रेपिंग एंड ऑल द हेयर स्टाइल्स एंड ऑल. उस दिन मेरा अभी तक कुछ रेडी नहीं था, मीन्स उस टाइटल के लिए मीन्स आउटफिट भी नहीं एंड कुछ नहीं. तो एक दीवा पैजेंट में अमंग 40 गर्ल्स, one or two girls came to me. They were having the magazine in the purse. उन्होंने निकाला और उन्होंने कहा कि ये ले स्वप्नाली, तुझे मिला नहीं है ना, तो एक काम कर, तू अभी जो भी आउटफिट पे है ना उसके ऊपर एक पिक क्लिक कर और पोस्ट कर जाके. मैंने कहा इस आउटफिट पे मैं कैसे पोस्टिंग करूँ, ये अच्छा नहीं लगेगा. देन एवरीवन सेड दैट इट्स ओके, यू कैन डू दिस. तो आप वहीं पे क्लिक कर दिया और रात को मैंने पोस्टिंग किया. और 3 दिन के बाद जब पैजेंट था, अचानक से मेरा नाम जब अनाउंस हुआ, आई वॉज लाइक एकदम सरप्राइज. मीन्स वाओ, दिस इज लाइक, इतना मैंने मैगजीन के लिए मीन्स कहाँ मिलेगी, कैसे होगा एंड ऑल, बहुत कुछ अप्स एंड डाउन्स हुए. एंड एट द एंड आई वॉन दिस टाइटल. आई फेल्ट सो लकी अबाउट दिस कि 40 कंटेस्टेंट में से जो ग्रुप थे 2020 के, सबकी नजर उस मैगजीन पे थी कि अरे ये इतना अच्छा मैगजीन है तो हमारी फोटो आएगी, हमारा ये आएगा, वो आएगा. ऑल वे डिस्कसिंग अबाउट दिस मैगजीन एंड एवरीथिंग, द टाइटल एंड ऑल. एंड आई वॉज लिटिल बिट नर्वस ऑन फर्स्ट डे कि मुझे नहीं मिला तो कैसे होगा एंड ऑल. बट एट द एंड इट हैपेंड एंड आई वॉन दिस टाइटल एंड इट वॉज अमेजिंग एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ एंड अ मेमोरी ऑफ द इवेंट. जी. एंड आजकल की जो गृह लक्ष्मियां होती हैं उनमें ये क्वालिटी आई थिंक बहुत जरूरी होती है, मल्टीटास्किंग की. ये पैजेंट भी कर रही है, फोटो भी खिंचवा रही है, इतना टेंशन में सब फटाफट करके फोटो खिंचवा लिया. तो आई गेस यही वो क्वालिटी होगी. एंड डेफिनेटली आपने जो मैटर लिखा होगा, क्योंकि काफी साल पुरानी बात है तो मुझे याद नहीं है आपने क्या लिखा था, बट नहीं मैंने यस मैटर जो कि गृह लक्ष्मी के एडिटर्स को काफी पसंद आए, जो आपने कंटेंट लिखा था अपने फोटो में. यस कंटेंट मैंने लिखा था उसके साथ, डेयर टू ड्रीम, डेयर टू फ्लाई, डेयर टू बी द चोजन वन टू टच द स्काई. एंड वो कंटेंट के साथ मैंने वो सिंपल सा मेरा फोटो विदाउट मेकअप, विदाउट एनीथिंग, मीन्स नो मेकअप नथिंग, एक छोटे से इयरिंग, जीन्स टॉप, रेगुलर लुक में वो पोस्टिंग कर दिया क्योंकि वो एक टास्क था. So, and it happened. I won this. Means that this was an amazing experience of my life. Yes. बिल्कुल. एंड आपको स्वप्नाली, जो आपकी उड़ान आपको मिली मिसेस गृह लक्ष्मी का, जो आपने टाइटल जीता मिसेस महाराष्ट्र में, उसके बाद आप एक ओवरनाइट सेलिब्रिटी बन गई कोल्हापुर में. आप बहुत सारे आपके इंटरव्यूज हुए, कोल्हापुर का जो रेडियो स्टेशन था उन्होंने भी आपको इंटरव्यू किया. उसके अलावा आई गेस महाराष्ट्र के बहुत बड़े शो में आपको इनवाइट किया गया एंड दैट वाज द नंबर 1 इवेंट ऑफ महाराष्ट्र. तो उसके बारे में कुछ बताइए, कैसे आपको इनविटेशन मिला, कैसे आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा. यस, इवेंट्स बहुत सारे मुझे अपॉर्चुनिटीज मिली दीवा पैजेंट जीतने के बाद. जब मैं कोल्हापुर में आई तो फर्स्ट मुझे अपॉर्चुनिटी जो मिली वो थी ब्रांड कैटलॉग शूट, मन मंदिर शूट की ब्रांड एम्बेसडर की अपॉर्चुनिटी मुझे मिली. तो उसकी ब्रांड एम्बेसडर मैं बनी और कंटिन्यू 3 साल मैं वो ब्रांड एम्बेसडर अभी तक मैं कर रही हूँ, मीन्स उनका ब्रांडिंग. एंड उसके बाद बहुत सारे इवेंट्स किए.
And the best event of this year before lockdown I did was a Lions Club of Malegaon event. And this was like amazing event in my life. यहाँ पे जो crowd attract हुआ, means हर जगह पे hoardings लगे थे, posters लगे थे and everything. So जब यहाँ पे crowd 15,000 and above क्राउड अट्रैक्ट किया गया, मीन्स उस इवेंट के लिए आए लोग, उन्होंने एंजॉय किया. इट वाज अ धमाल स्ट्रीट इवेंट इन मालेगांव, नासिक. तो यहाँ पे पूरा गेम्स खेलना और एवरीथिंग लाइक हैप्पी स्ट्रीट जैसे होता है, उस टाइप का धमाल स्ट्रीट इवेंट फर्स्ट टाइम ऑर्गेनाइज किया गया था मालेगांव की तरफ से. एंड इट वाज द अमेजिंग इवेंट ऑफ द ईयर एंड इट हैज बीन नॉमिनेटेड फॉर द बेस्ट इवेंट दिस ईयर. मैंने आपके फोटोज देखे थे, वो पूरी जो बोलते ना एक आर्मी थी बाउंसर्स की जो आपको प्रोटेक्ट करती थी. यस मैम, एक्चुअली बचा लो इसको. मुझे अब याद है मैं बोल रही हूँ यार ये कौन से इवेंट में गई है जहाँ पे इतने बाउंसर्स. वो क्राउड हैंडल नहीं हो रहा था, मीन्स पुलिस को हैंडल नहीं हो रहा था क्राउड. वो लायंस क्लब के जो मेंबर्स थे उनको हैंडल नहीं हो रहा था. सब आके लाइक ऑलवेज क्लिकिंग द फोटोग्राफ, यहाँ से खींच रहे थे, वहां से खींच रहे थे. मीन्स मैम हमारे साथ फोटो ऐसे हो रहा था. मीन्स एवरीथिंग टिल द स्टेज वेयर आई वाज मीन्स अप्रोचिंग द स्टेज, वहां पे जाने तक इतना मीन्स हेक्टिक हो रहा था, सबको मीन्स डिस्टर्बेंस हो रहा था. तो बाउंसर्स वो जो थे वो भी आ रहे थे, बीच में हटा रहे थे क्राउड को यहाँ वहाँ. Can you see me, hello. Swapnali? Yes, I can see you, ma'am. There was a range problem your side. Yes, I can see you now. Yeah. ओके. आप मुझे बता रही थी कि पुलिस हैंडल नहीं कर पा रही थी क्राउड को, आप जिस इवेंट. yes. There was an amazing crowd. जी. बोलिए स्वप्नाली, आप कुछ बोल रही थी. हाँ यस. नहीं वो क्राउड के बारे में, मतलब इतना क्राउड हो गया था, वो देखने के लिए सिर्फ आए थे लोग, एंजॉय करने के लिए आए थे, फोटोग्राफ खींच रहे थे एंड एवरीथिंग वाज मीन्स इतना क्राउड हो रहा था कि पुलिस एंड बॉडीगार्ड, लायन क्लब के मेंबर्स, कोई मीन्स सबको हैंडल करना डिफिकल्ट जा रहा था. बिल्कुल इतना मीन्स यस. एंड वो इवेंट ऑफ द ईयर मीन्स इस साल के लिए नॉमिनेट हुआ है इवेंट, बेस्ट इवेंट ऑफ द ईयर. एंड होप यस जी. एंड बहुत अच्छी बात है कि दीवा की जो गर्ल्स हैं वो ना सिर्फ इंडिया में, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे भी उनको बुलाया जा रहा है एंड वो दीवा के नाम को रिप्रेजेंट कर रही हैं. एंड आपने तो बहुत झंडे गाड़े हैं दीवा को कोल्हापुर में आगे लेके जाने के लिए. इनका रेंज बार बार जा रहा है स्वप्नाली का. स्वप्नाली आप मुझे देख सकते हैं, सुन सकते हैं? स्वप्नाली मैम रेंज कट हो गया, रेंज आउट ऑफ रेंज. जी मैं आपको आई कैन सी यू स्वप्नाली, आई कैन ओनली हियर यू, सो आई एम गोइंग टू टेक यू लाइव अगेन विथ मी. ओके मैम. जी. एंड हर वीक कुछ ना कुछ वाईफाई में जो है इशू आ ही जाता है, बट आ चुकी हैं स्वप्नाली हमारे साथ. जी स्वप्नाली, मैं ये जानना चाहती थी आपसे कि आप काफी छोटे शहर से हैं जिसको हम बोलते हैं टायर 3 या फिर क्लास C टाउन जिसे बोला जाता है. राइट. आप बिलोंग करती हैं. इतनी छोटी जगह में लोग बोलते हैं कि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है, हमारे पास एजुकेशन इंस्टीट्यूट उतने नहीं है, ग्रूमिंग इंस्टीट्यूट उतने नहीं है, कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी करने के लिए नहीं है. बहुत जल्दी जो है वो शहर में रात हो जाती है, लोग सो जाते हैं अपना काम करके. ऐसे लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? बिकॉज आप भी एक छोटे शहर से उठ के आई हैं और आपने इतनी शोहरत कमाई है अपने
जो आप करना चाहती थी लाइफ में, अपने ड्रीम्स को हासिल करना, उसको इतनी खूबसूरती से हासिल किया है। तो ऐसी बहुत सारी महिलाएं होंगी, आप भी कोल्हापुर में बाहर जाती होंगी और वो ये सारी बातें आपको बताती होंगी, तो आप क्या उनको मैसेज देना चाहती यस, मैसेज अभी कोल्हापुर में जब से मैंने ये क्राउन जीता है, आफ्टर दैट आई टुक द ऑडिशन एज आई डिस्क्राइब्ड बिफोर कि ग्लैम स्क्वाड इवेंट्स क्रिएटिव कंसेप्ट जो है इसके अंदर मैं कई इवेंट्स भी करती हूँ। तो मैंने खुद कुछ इवेंट्स लिए जिसमें बहुत सारी महिलाएं आगे आई, उन्होंने पार्टिसिपेट किया और वो आगे जा रही है। मीन्स उन्होंने फैशन शोज में पार्टिसिपेट किया, पैजेंट्स में पार्टिसिपेट किया, कई पैजेंट्स के नाम आए। मीन्स बहुत सारी लड़कियां हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो ऐसे कुछ नहीं कि आप छोटे शहर से हो तो आगे नहीं बढ़ सकते। इट्स लाइक आप में एक पॉजिटिव खुद को पॉजिटिव रखना जरूरी है। और पीपल व्हाट पीपल आर सेइंग, व्हाट पीपल आर टॉकिंग अबाउट, यू हैव टू इग्नोर दिस एवरीथिंग। एंड बहुत बार ऐसे होता है कि छोटे शहरों में ऐसे होता है कि बहुत बार बताया जाता है, बोला जाता है कि अरे ये इस फील्ड में चली गई है तो दिस एंड ऑल दैट। सो जस्ट इग्नोर दीज पर्सन्स एंड गो अहेड। मेरा मैसेज यही है कि आपको आगे जाना है, आपको खुद को कॉन्फिडेंट रहना है एंड आपके ड्रीम्स आपको अचीव करने हैं। जस्ट इग्नोर एवरीथिंग। आप छोटे शहर से हो तो भी अगर कोई आपको पीछे खींचने के लिए कोई ऐसे मीन्स कुछ बोले या फिर कुछ करे, तभी भी आपका कॉन्फिडेंट लेवल जो है वो कायम रहना चाहिए। मीन्स दिस इज इम्पोर्टेंट। यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट wherever you go. It's not only in the cities, in small cities, but in big cities too, means metro cities too, everywhere. बिल्कुल। एंड अगर किसी में आगे बढ़ने की चाह है, कॉन्फिडेंस है एंड ड्रीम्स है, yes. तो बिल्कुल yes. आप गांव में रहे, चाहे आप शहर में रहे, चाहे आप शहर में रहे, yes. बट आपकी सबको मिल ही जाएगी। बहुत अच्छी आपने बात बोली। इसके अलावा मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप जॉइंट फैमिली को बिलोंग करती हैं, तो जब आपने ताज जीता, अपने नाम किया मिसेस गृहलक्ष्मी का, मिसेस महाराष्ट्र 2017 में, आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन हुआ? आपके जो आउटलुक था आपके बारे में, आपकी फैमिली में, आपके फ्रेंड्स में, वो कैसे चेंज हो? इट वॉज अमेजिंग रिस्पॉन्स। मीन्स घर पे सब ऑब्वियसली हैप्पी, दे वर ऑल हैप्पी, क्योंकि सब ने मुझे देखा है कि बचपन से देखते आ रहे हैं कि टेलीविजन का क्रेज है, रैंप वॉक एंड एवरीथिंग, ग्लैमर इंडस्ट्री का क्रेज है, क्योंकि पहले से मुझे सब देखते आ रहे हैं बचपन से। एंड व्हेन जब मैं ये क्राउन जीत के आई तो एवरीवन वाज सो हैप्पी कि नाउ स्वप्नाली यू ऑन द प्लेटफॉर्म। यस, आपने पार्टिसिपेट किया, ये अच्छी बात हुई, आपने इतना अच्छा टाइटल जीता है, दिस इज द सेकंड पॉइंट। एंड थर्ड पॉइंट, आपको अभी अपॉर्चुनिटीज ओपन हो रहे हैं। मेरा मीन्स एक ग्लैमर इंडस्ट्री के सामने फेस एक्सप्लोर हुआ एंड यहाँ से मेरी शुरुआत हुई करियर की, मीन्स ग्लैमर इंडस्ट्री की तरफ। जी यस, बहुत अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज मिलते गए एंड फैमिली सपोर्ट इज इम्पोर्टेंट। मीन्स इन ईच फील्ड फैमिली सपोर्ट इज इम्पोर्टेंट, बट पर्टिकुलरली इन ग्लैमर फील्ड बहुत कम लड़कियां हैं जिनको सपोर्ट मिलता है कि आगे जाने के लिए, बिकॉज इट्स लाइक यस एवरीथिंग इज लिटिल बिट डिफरेंट ओवर हियर। मीन्स किसी के ऊपर ट्रस्ट करना या फिर ड्रेसेस जो आप पहनते हो वो भी मैटर करता है। सो एवरीथिंग बिट डिफरेंट इन ग्लैमर फील्ड, बट जब फैमिली का सपोर्ट रहता है तो बहुत आगे आप जा सकते हो। एंड इट हैपेंड अबाउट मी टू। सबने मुझे बचपन से देखा था कि इसको क्रेज है ग्लैमर इंडस्ट्री का एंड इसको आगे जाने की चाह है, तो इसको जाना है, लेट हर गो। मीन्स एवरीवन सपोर्टेड मी, एवरीवन, राइट फ्रॉम माई सन। मीन्स ही ऑल्सो नोज कि मम्मा को ये करना है तो इसका शूट है, आई वॉन्ट डिस्टर्ब हर, लेट हर गो। ऐसे होता है। मीन्स वो भी बहुत सपोर्ट करता है मुझे इस बारे में। एवरीवन इज वेरी सपोर्टर। जी जी, एंड बहुत आपने अच्छी बात बोली कि आपकी फैमिली भी आपको सपोर्ट करती है। फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके? स्वप्नाली, आप मुझे सुन सकती हैं? आपको आवाज आ रही है मेरी स्वप्नाली? कैन यू हियर? कॉल्स, यस कॉल्स का कुछ डिस्टर्बेंस हो रहा है आज। नो प्रॉब्लम। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? यस, अभी जो मैंने अचीव किया है तो वो कंटिन्यू रहेगा। एवरीथिंग आई डोंट प्लान, मीन्स फ्यूचर प्लान्स ऐसे कुछ मैं नहीं बनाती। जो प्रेजेंट है उसमें ही जो अपॉर्चुनिटीज आती है मैं इजीली उसको
मीन्स एकदम से ऐसे यस, जो भी अपॉर्चुनिटीज आती है आई ग्रैब द अपॉर्चुनिटीज एवरी टाइम। अपॉर्चुनिटी आ गई आपके घर में, लाइफ वापस आ गई। यस, एक्चुअली आज मंडे है, तो मंडे को कोल्हापुर में लोड शेडिंग का प्रॉब्लम होता है, सो दिन भर मंडे को लाइट आती जाती रहती है। दिस इज द प्रॉब्लम वो हियर, सो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस। नो प्रॉब्लम। यस जी, तो आप अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में बता दीजिए। यस, फ्यूचर प्लान्स एक्चुअली जो भी अपॉर्चुनिटीज आती है मैं ग्रैब करती हूँ। आई डोंट प्लान एनीथिंग, व्हाट आई फील इज द बेस्ट आई डू इट। मीन्स अभी भी एंड जो भी हो अपॉर्चुनिटी। एंड इनिशियली अभी मैं चैनल के साथ ज्वाइन हो रही हूँ, अभी वो सरप्राइज है सबके लिए। जब ज्वाइन हो जाऊंगी तो यस जरूर आपको सबको पता चलेगा। सो यस, दैट इज वन मोर थिंग एडिशनल। बिल्कुल। एंड जब आप चैनल के साथ ज्वाइन होंगी तो टेलीविजन पे आप आएंगी एंड हम सबको हंसाएंगी, हमारा मनोरंजन करेंगी। तो बेस्ट आपकी न्यू टेलीविजन स्टिंट के लिए कोल्हापुर में। आपका अंजना एंड काल के साथ कैसा इक्वेशन है एंड क्या फील करती हैं आप उनके बारे में? अंजना एंड काल सर आर ट्रूली मीन्स स्वीट हार्ट। बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छी तरह से सब जो भी जहाँ पे भी डिफिकल्टीज आते हैं सब सॉल्व मीन्स एकदम से गाइड बहुत अच्छी तरह करते हैं। मीन्स जो भी डिफिकल्टीज हो या फिर कहीं पे लगता है कि मैम मैं ये करूँ या नहीं करूँ, अगर मैं कभी उनको पूछती हूँ देन शी गाइड्स मी स्वप्नाली, ये दिस इज द वे यू कैन डू इट, दिस इज द वे यू कैन नॉट। सो इफ यू वांट यू कैन गो, इफ यू डोंट देन स्टॉप। मीन्स वो इतनी अच्छी तरह से सब बताती है। इवन काल सर इज सो सपोर्टिव टिल मीन्स अभी तक के जर्नी में दोनों का बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है। इवन यू हैव बीन सपोर्टिव इन माय करियर टिल नाउ। सो दिस इज जस्ट आई एम सो लकी टू हैव यू ऑल, रियली। And we are also very lucky to have you with us, Swapnali. Okay, so Thank you. क्वेश्चन थे वो कवर कर लिए हैं। अब हम जाएंगे हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसको हम बोलते हैं रैपिड फायर। बट उससे पहले गर्ल्स, अगर आप स्वप्नाली से कोई भी क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं तो प्लीज उसे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। एंड हमारा रैपिड फायर जब खत्म होगा तो हम स्वप्नाली से पूछेंगे सारे क्वेश्चन। ओके, सो इसी नोट पे मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि अगर आपको चांस मिले टू बिकम अ वेरी सक्सेसफुल एक्ट्रेस और टू बिकम अ वेरी सक्सेसफुल पॉलिटिशियन, तो आप दोनों में से क्या चूज करें? Oh God, actress, no politics. I hate politics and politicians. बहुत कुछ देखा है मैंने लाइफ में बहुत कुछ देखा है। मैं एक सोशल एक्टिविस्ट भी रही हूँ। इस साल मैंने सब में थोड़ा सा स्टॉप किया है बिकॉज आई हैव सीन द पॉलिटिक्स एंड डर्टी पॉलिटिक्स एवरीवेयर। आई हैव सीन दिस, so I just hate politics. I would like to be an actress if I get the opportunity. Yes. जी, एंड आई थिंक कोल्हापुर में खास तौर पे जो बोलते हैं ना, लोगों का गुस्सा इतना प्यार से निकल के बाहर प्यार से Really? आपका जो टोल है, जब वो लगा था टोल, मैंने देखा उसको ऐसे जलते हुए लोग पत्थर मार एकदम समा बंधा हुआ था। Yes. तो बहुत वहाँ का पॉलिटिशियन होना, तो इसीलिए मैंने Yes. पूछा था। Yes. So, कोल्हापुर में ना खाना बड़ा ही अच्छा मिलता है। Of course, yes. कौन सा फेवरेट जॉइंट है आप जहाँ पे आपको खाना खाना बहुत ज्यादा पसंद? कौन सा फेवरेट? आपका कौन सा फेवरेट फूड जॉइंट है जहाँ का खाना खाना आपको बहुत ज्यादा पसंद? फूड, आई लाइक एवरी काइंड ऑफ फूड। मैं फूड लवर हूँ। मीन्स मुझे स्वीट्स खाने अच्छे लगते हैं, ऑल टाइप ऑफ। यहाँ पे कोल्हापुर में जब आप आते हो तो आपको यहाँ पे तांबड़ा पांडरा रस्सा ऐसे बोला जाता है। नॉनवेज थाली होती है उसमें, और वो बहुत फेमस है यहाँ पे, एंड आई लव दैट फूड टू। Yes. जी, एंड आई थिंक तांबड़ा एंड पांडरा जो रस्सा है वो देखिए मैम भी आ गई बीच में, उनसे रहा नहीं गया। एंड रुचिता जो बोलते हैं कि चलते क्या, मतलब वो किसी को पूछ रही है शायद कि भाई मेरे साथ चलो कोल्हापुर थाली खाने। तो नानी जी आ गई है। एंड स्वाति बोल रही है कोल्हापुर की मिर्ची। अच्छा, कमेंट आगे चला गया। कोल्हापुर
कोल्हापुर की मिर्ची, यस। स्वाति चाहती है कि वो बोलती हैं आप कोल्हापुर की मिर्ची हैं, और उनके लिए जरा कोल्हापुर की मराठी में एक लाइन बोलती हैं। ओ, कोल्हापुर, मी आहे कोल्हापुरची लवंगी मिर्ची। स्वाति, आई एम श्योर आपने सुन लिया है लवंगी मिर्ची, यस। वाला लाइन, और आप बड़ी खुश हो गई हैं। एंड मुझे लगता है यहाँ पे तो ना सारे वो आपकी कोल्हापुरी थाली के जो है फैंस आ गए हैं। एक्चुअली कोल्हापुरी थाली जो थी ना, अंजना मैम ने यहाँ पे जब ऑडिशंस के लिए विजिट किया था, तो स्पेशली से रिक्वेस्टेड कि जब मैं कोल्हापुर आऊंगी तो मुझे कोल्हापुरी थाली टेस्ट करनी है, और उन्होंने की थी एंड शी लव्ड इट, यस यस। So that was she is telling. बहुत सारे लोग आ चुके हैं, और रोनाली आपको बता रही है कि भाई जो महालक्ष्मी टेम्पल है उसके बाजू में अप्पे भी बड़े मस्त मिलते हैं, तो अगर आपको नहीं पता है तो उन्होंने आपको बता दिया है, तो जाके खा लीजिएगा। ओके। नहीं मिलते हैं, महाद्वार रोड पे मिलते हैं एक्चुअली, यस। सुबह का ब्रेकफास्ट रहता है वहाँ पे। जी 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 जी। यस। ओके, तो नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, और ये मैं क्वेश्चन ना मैं सभी लोगों से पूछती हूँ, एंड सारी जो हमारी गृह लक्ष्मियां हैं और जो हमारी दीवा की क्वीन है, सबको बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है। तो भाई, अगर आपका जो सपना है कि आप अपने पति के अलावा किसी और के साथ अगर डेट पे जा सकते हैं, तो आप किसके साथ डेट पे जाना चाहेंगे? तो मेरा जो चॉइस है वो है रणवीर कपूर, रणवीर सिंह, शाहिद कपूर एंड राजकुमार राव। तो आप किसके साथ जाना चाहेंगे? शाहिद कपूर, आई लाइक हिम, शाहिद कपूर। चलिए, उनके वैसे तो 2 बच्चे हैं, बट कोई बात नहीं, आई एम श्योर आपका भी एक बच्चा है। आई वुड लव टू गो, आई वुड लव टू गो विद हिम, यस। एंजॉय करिए एंड अपने, यस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे देखिए, धीरज जी बोल रहे हैं बड़ा फनी क्वेश्चन है। धीरज जी, ये पूछिए, शादीशुदा लोगों से पूछिए, जब उनको चांस मिलता है ना किसी और के साथ डेट पे जाने का, तो लगता है कि भाई कैसे भी करके डेट हो जाए बस कंप्लीट। जी। अच्छा, अनघा पूछ रही है मुझे उनका एक मराठी उखाना। अब वो मराठी उखाना क्या होता है? मराठी उखाना, oh God, Marathi Ukhana. Okay, I will take Marathi Ukhana. Actually, this is for married women. Those women who are married, they take a Ukhana. Means वो जैसे हम शायरी वगैरह बोलते हैं ना, वैसे उखाना रहता है, अपने हस्बैंड के लिए आ जाता है शादी के बाद। तो she's asking me that. अभी शाहिद कपूर के साथ जाने के बाद मैंने आपको ये डेट वाला क्वेश्चन पूछा, मैंने याद दिला दिया। देखो, तुम अपने पति के लिए सिर्फ खाना बोला, शाहिद कपूर के चक्कर में बिल्कुल मत पड़। वही मैं बोल रही हूँ, अभी तो प्लान किया शाहिद कपूर के साथ जाने के लिए, और उखाना लेने के लिए बोल दिया उन्होंने। जी जी जी, पूरा आपको याद दिला दिया। धीरज भी बोल रहे हैं, बोल ही दीजिए आप, मराठी कल्चर है। ओके, वो एक्चुअली मराठी कल्चर में लिया जाता है शादी के बाद। ओके, आई विल से वन स्मॉल वन। अंबाबाईच्या देवळाला सोन्याचा कळस, अजिंक्यचे नाव घ्यायला मला नाही आळस। ओके, तो उन्होंने बता दिया। अजिंक्य आपके हस्बैंड का नाम है क्या? हस्बैंड का नाम है, और उनका नाम लेना पड़ता है उखाना। अच्छा, तो भाई देखिए, ये अजिंक्य जी के लिए स्पेशली जो है ये उखाना बोल रहे हैं। धीरज बोल रहे हैं वाह वाह, तो धीरज आपके फैन बन चुके हैं। थैंक यू, थैंक यू सो मच। यस, अजिंक्य मुझे बोलेंगे अभी शादी को 17 इयर्स हो गए, अभी तो खाना ले रही है। तो आप उन्हें बोल देना, गृह लक्ष्मी बनने की प्रैक्टिस करेगी। गृह लक्ष्मी एक्चुअली। ओके, तो नेक्स्ट मेरा प्रश्न है आपसे कि अंजना मैम और काल सर जो हैं दोनों, जो कि इतने बहुत ही हमारे इंडिया के फेमस पैजेंट कोचेस हैं, तो उनके बारे में एक एक वर्ड में आप उन्हें डिस्क्राइब कर दीजिए। दोनों के लिए एक वर्ड? जी। अमेजिंग कपल।
अमेजिंग कपल। तो चलिए अंजना जी एंड विकाल सर, ये वाला भी जो नया वर्ड आपको मिला है इसको भी प्लीज लिख के नोट करके रखिएगा। अमेजिंग They कपल, बहुत are ही truly amazing couple. Yes. दोनों ही बड़े ही अमेजिंग कपल हैं और जितनी भी दीवा गर्ल्स इनसे आके जुड़ती हैं वो भी एकदम अमेजिंगली दीवा लिशियस हो जाती है जी, बहुत सारी क्वींस बन जाती हैं। तो Yes. थैंक यू अंजना जी एंड काल सर इतना हम सबको प्यार देने के लिए, एंड आपका नया वर्ड अमेजिंग कपल इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। तो अभी हमारा जो ये धमाकेदार रैपिड फायर था वो खत्म हो चुका है, एंड Okay. नेक्स्ट हमारे जो क्वेश्चन वाला जो सेगमेंट है हम उसको लेना चाहेंगे। तो गर्ल्स अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं स्वप्नाली के लिए तो प्लीज उनको आप हमारे कमेंट सेक्शन में पुट इन कर दीजिए, एंड हम अपनी जो प्यारी स्वप्नाली जी हमारे साथ ऑनलाइन है उनसे ये सारे क्वेश्चन पूछेंगे और वो उसका जवाब भी आपको देंगे। तो भाई आपका पहला प्रश्न आ चुका है कि हाउ यू लुक सो यंग। Oh, actually, no, I'm not kidding. It's 17 years of marriage. Yes, 17 साल पहले मेरी शादी हुई थी, 17 साल पहले. Actually, it's natural. Means मैं ऐसे naturally मैं ऐसी हूँ. Means no, nothing I can explain on this. जी, तो ये सारा जेनेटिक्स का कमाल है, तो Yes. आपको अपनी मम्मा और पापा को थैंक यू बोलना चाहिए कि Yes. आपके इतने अच्छे फैंटाबुलस जेनेटिक्स बनाए हैं कि आपकी उम्र से Genetic एकदम आपकी त्वचा से आपकी उम्र का पता नहीं उम्र का पता ही नहीं चलता. चलता। संतूर मॉम है आप, एंड बहुत सारे कमेंट्स Yes. आते हैं खूब छान Yes, thank you. मस्त खाना और मतलब Yes. सारे खाने के तो आपके एकदम फेवरेट हो गए, मतलब सबको बड़ा ही पसंद आ गया है। अंजना मैम Thank you. व्हाट इज योर मैसेज टू द गर्ल्स हु वांट टू पार्टिसिपेट इन अ ब्यूटी पैजेंट आफ्टर एक्सपीरियंसिंग वन योरसेल्फ। मतलब आपने जो एक ये ब्यूटी पैजेंट एक्सपीरियंस किया है तो आप बाकी गर्ल्स को क्या बोलना चाहेंगे जो ब्यूटी पैजेंट करना? एक्चुअली ब्यूटी पैजेंट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको खुद को एक्सप्लोर करने का चांस मिलता है. यू एक्सप्लोर योर सेल्फ, यू गेट अ गुड अपॉर्चुनिटीज. अगर आपको ग्लैमर फील्ड में जाना है तो ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप पार्टिसिपेट कर सकते हो एंड यू कैन एक्सप्लोर योर सेल्फ. सो इट्स better to participate in a pageant instead of participating in a fashion shows and anything else. Means ये तो best platform है लड़कियों के लिए and this is the best platform to diva कि married होने के बावजूद हम इसमें participate कर सकते हैं. So yes, they have to participate. जी, Everyone जिनको जी 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 हाँ. जी बोलिए। यस, जिनको भी पार्टिसिपेट करना है वो जरूर करे और जिन्होंने किया है वो आगे जाए. जो भी पार्टिसिपेट करती है, क्राउन भले ही आप एकदम मीन्स मेन क्राउन लो या फिर सब टाइटल लो, इट्स अप टू यू कि आप कितना स्ट्रगल करते हो या आप कितने कॉन्फिडेंट हो इस आगे जाने के लिए. सो दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर द गर्ल्स और फॉर द लेडीज मीन्स पैजेंट जर्नी. जी, Yes. एंड जो आपने ये बात बोली है बिल्कुल ही सही बात बोली है, बिकॉज मैंने भी अपनी जो पैजेंट की शुरुआत थी मैंने मिसेस पूना से शुरुआत की थी, जहाँ Yes. पे मैं सेकंड रनर अप थी, एंड आफ्टर दैट अंजना मैम ने मेरे को तैयारी कराई एंड मैं मिसेस इंडिया में गई, मिसेस इंडिया जीता, एंड उसके बाद काफी और एक दो पैजेंट किए जिन्हें भी मैंने जीते. तो बहुत अच्छी मेरी भी करियर की शुरुआत जो हुई है वो Yes. पैजेंट से ही ऑफ हुई है. कोर्स पैजेंट से ही हुई है. हैं उसके बाद टेलीविजन में काम करने का मौका मिला है. आई एम ऑल्सो Yes. प्रोफेशनल एंकर, आई एम डूइंग शोज ऑल अराउंड इंडिया एंड वर्ल्ड. तो डिपेंड करता है कि आप अपनी अपॉर्चुनिटी को कैसे कैशन कितने आगे लेके जाते हो. यस जी यस, दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट. जी, एंड आप चाहे मेन टाइटल जीते चाहे आप सब टाइटल जीते उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. आप अपने Yes. आपको कितना आगे लेके जा सकते हैं, आगे लेके जाते हो. हाउ यस यस, एंड आपको क्या कितनी लगन से करते हो. जी, यस जी, तो Of वो course. बहुत इम्पोर्टेंस रखता है. बिल्कुल आपने सही बात की. यस. विभूति आपसे पूछ रही है कि आप एक सेलिब्रिटी हैं एंड इतना अच्छा जो आप मॉडेस्टी लेवल रखती हैं, मतलब जो ग्राउंडेड आप इतनी हैं, तो उसकी वो आप कैसे मेंटेन करते
एक्चुअली यस, ये मेरा स्वभाव है। मीन्स किसी को कितने भी आगे जाओ, हमें अपने एक ग्राउंड लेवल पे रहना चाहिए। मीन्स एटीट्यूड नहीं दिखाना चाहिए किसी भी जगह पे जाके। सो दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ योर पर्सनालिटी कि आप जब ग्राउंडेड रहते हो मीन्स एक लेवल पे, तो आपको अपॉर्चुनिटीज ज्यादा आते हैं। जहाँ पे आप एटीट्यूड दिखाते हो वहां पे आपके पास अपॉर्चुनिटीज कम चल के आती है। So this is one of the best part of my personality कि मुझे इतने सारे opportunities मिलते हैं क्योंकि मैं लोगों के साथ घुल मिल जाती हूँ। Easily I means get involved into the persons, communicate with the means communicate करती हूँ जो भी रहते हैं उनके साथ। और जो भी opportunities आती है छोटी हो या बड़ी हो, I decide कि कौन सी means proper है कौन सी नहीं है। Easily means ऐसे कुछ हाथ से जाने नहीं देती हूँ, पर जहाँ पे बेस्ट लगता है आई ग्रैब इट। यस जी जी, तो वही मैंने बोला कि आप जब अपना पैजेंट खत्म करते हैं तो उसके बाद आपके पास एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि आपको किस वे में आगे बढ़ना है। प्लस एटीट्यूड दिखा के एंड नहीं होता है कुछ वैसे नहीं होता है। यू हैव टू बी ग्राउंडेड, यू हैव टू शार्पन द सॉ। आपको आपका जो टैलेंट है उसमें निखार लाने की जरूरत होती है, मेहनत करने की जरूरत होती है, मेहनत करने की जरूरत होती है। जी, तो ओवरनाइट कोई स्टार नहीं बनता है, उसके पीछे नहीं बनता है, बहुत डेडिकेटेड आपको एक लाइफस्टाइल जीना पड़ता है। बहुत सारी आपकी ऐसी ख्वाहिशें हैं जिनको ताक पे रखती है और आपको आगे बढ़ना होता है, मेहनत करनी होती है। तो बिल्कुल सही आपने ये बात बोली। ओके, सो बहुत सारे बीच में मुझे मैसेजेस आ रहे हैं। आई थिंक आज भी मेरे ये इयररिंग सबको पसंद आ रहे हैं, तो मैं आपको बहुत अच्छा है। यस, ब्यूटीफुल इयररिंग। अगर आपको याद है तो ये वाला जो इयररिंग था आज मैंने जानबूझ के पहना क्योंकि ये मैंने मिसेस महाराष्ट्र 2017 में पहना था। वाओ, ग्रेट, वेरी नाइस, वेरी नाइस। इसको पहना था इसीलिए वेरी नाइस, स्पेशली इयररिंग्स पहना। बहुत अच्छा है। यस, वेरी प्रिटी इट इज। जी, एंड प्रगति, थैंक यू सो मच कॉलिंग मी ब्यूटीफुल। आपको बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि आपकी वर्ड्स बहुत मोटिवेटिंग हैं, बहुत अच्छे मैसेजेस आप शेयर कर रही हैं। मृणाल आपसे पूछना चाहती हैं कि व्हाट इज द स्कोप। तो आई थिंक ये क्वेश्चन पूछना चाह रही है कि पैजेंट का क्या स्कोप है। अच्छा, अभी हमने जस्ट डिस्क्राइब किया कि कैसे पैजेंट जर्नी हेल्प, हाउ इट हेल्प्स लेडीज टू गो फॉरवर्ड। जो भी है पैजेंटरी जर्नी के बाद आपके हाथ में है कितना आप आगे जाते हो, कितने अपॉर्चुनिटीज आप ग्रैब करते हो, दैट इज इम्पोर्टेंट। जी जी, सो मृणाल आई थिंक आपका उन्होंने जवाब दे दिया है कि जब आप एक पैजेंट करते हैं तो आपको एक माध्यम मिल जाता है अपने आप को और खूबसूरती से और आगे, हाँ, आगे ले जाने का। टाइटल मिल जाता है, हो सकता है विनर भी बन जाए। एक माध्यम मिलता है अपनी बात दुनिया तक पहुंचाने के लिए और एक लोगों की नजर में आने के लिए, एक उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए कि आप एक पैजेंट की विनर हैं। एंड उसके बाद आपकी स्ट्रैटेजी रहती है कि आप क्या करना चाहते हैं। आप एंटरटेनमेंट में रहना चाहते हैं, पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, सिनेमा में जाना चाहते हैं, कॉर्पोरेट में आप आगे बढ़ना चाहते हैं। बिकॉज हमारे यहाँ तो ऐसी बहुत सारी गर्ल्स हैं जिनको काफी टॉप पोजीशंस मिली हैं कॉर्पोरेट में भी, काफी लोगों के जॉब लगे हैं विनर बनने के बाद या सब टाइटल जीतने के बाद। एंड टुडे दे आर वर्किंग ऑन वेरी हाई पोजीशंस, गुड पैकेज। सो डेफिनेटली आपका जो सीवी होता है या जो रिज्यूम होता है उसमें एक एडेड क्वालिफिकेशन जुड़ जाता है दैट यू आर आल्सो अ टाइटल विनर ऑफ सो एंड सो टाइटल। जी, एंड लेट मी चेक इफ वी हैव मोर क्वेश्चंस फॉर यू। Okay, so people are calling you pure soul, very pretty, very beautiful. Thank you so much, thank you. जी, तो रुचिता आपसे पूछती है कि आपको ऐसा लगता है क्या कि अपॉर्चुनिटीज के लिए लक बहुत मायने रखता? I don't think so. Means it's up to you. Means luck तो है. Means luck जितना हो, जितना आप काम करते हो, it's your efforts. Means आप जितने efforts डालते हो उतने अपॉर्चुनिटीज आपके पास आते हैं। आपके स्ट्रगल करने का मीन्स जो तरीका है, मीन्स किस तरह से आप अपॉर्चुनिटीज को लेते हो, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। यस। सो आप कैसे अपॉर्चुनिटीज को लेते हो? तो मुझे ऐसा लगता है कि लक कहीं ना कहीं मायने रखता है, लेकिन उससे ज्यादा मायने रखता है आपकी स्ट्रैटेजी एंड आपका हार्डवर्क।
तो अगर आप हार्ड वर्क इज इम्पोर्टेंट, स्ट्रैटेजी है तो डेफिनेटली लक भी आपके बाजू में बिल्कुल लक भी आप बोलेगा रुचिका जी, नो आई एम हियर विद यू। यस मृणाल क्वेश्चन पूछ रही है, आई एम मिस इंडिया टूरिज्म इंटरनेशनल 2012 एंड आई एम मैरिड नाउ। तो इन्होंने इंडिया को मिस इंडिया टूरिज्म टूरिज्म इंटरनेशनल में इन्होंने रिप्रेजेंट किया है इंडिया को, एंड अब इनकी शादी हो गई है। ये जानना चाहती हैं कि मिसेस इंडिया पैजेंट कब चालू होने वाला है। तो मृणाल, मैं आपको बता दूं कि मिसेस इंडिया पैजेंट के रजिस्ट्रेशंस ऑलरेडी चालू हो चुके हैं। आपका जो नंबर है वो आप मैसेज जो हमारा मैसेज सेगमेंट है इंस्टा हैंडल का, वहां पे आप ड्रॉप इन कर दीजिए, या फिर मिसेस इंडिया एम्प्रेस ऑफ द नेशन हमारा पेज है फेसबुक पे, वहां पे अपना नंबर ड्रॉप इन कर दीजिए। हमारे जो कोऑर्डिनेटर्स हैं वो आपको संपर्क करेंगे एंड सारी जानकारी आपको दे दी जाएगी। एंड इसकी रजिस्ट्रेशन अभी चालू है, लिमिटेड दिनों के लिए चालू है, बिकॉज ऑलरेडी हमारे पास काफी एंट्रीज आ चुकी हैं। तो प्लीज डू इट ASAP। तो विभूति आपसे बोल रही है कि आपने जो भी बात बोली बहुत ही सही बोली, एंड ये सारी जो चीजें हैं ये लोगों को आपसे सीखनी भी चाहिए और इनको प्रैक्टिस भी करना चाहिए। यस इम्प्लीमेंटेशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। जी, नेहा बता रही है कि दीवा पैजेंट इज द बेस्ट। उन्होंने एक नॉर्मल स्की को एकदम ट्रांसफॉर्म करके दीवा बना देते हैं। जी जी जी। अंजना मैडम ने बता दिया है कि divapatterns.com पे भी जाके आप इनरोल कर सकती हैं मृणाल जी। ठीक है, बहुत सारे हमारे पास ब्यूटीफुल कमेंट्स आ रहे हैं आपके लिए। थैंक यू। अनघा बोल रही है कि आपका बहुत ही सुंदर आपका दिमाग है, एंड बहुत अच्छी आप बातें कर रही हैं, अपना एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर कर रही हैं। जी, तो जी। एंड मृणाल बता रही हैं कि उन्होंने मिस इंडिया में टूरिज्म में वो टॉप 7 में थी। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस मृणाल जी, बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। तमन्ना है हमारी। क्राफ्ट योर विशेस आपसे पूछना चाहते हैं कि व्हाट इज योर ड्रीम इन लाइफ? Dream in life is to go ahead in whatever I do, to get successful in whatever I do. जो भी अचीवमेंट्स है वो मुझे अचीव करना है, जो भी ड्रीम्स है वो फुलफिल करने हैं। दैट इज यस, एंड आई हैव डिड इट। मीन्स जो भी ड्रीम्स थे वो मैंने अचीव किया है, एंड आगे भी मुझे करना है और करना है। यस, एंड हमारी यही दुआ है कि आप और आगे जाएं, एंड कोल्हापुर की ही नहीं पूरे इंडिया की, पूरे वर्ल्ड की आप बहुत ही अजीब शख्सियत बने, एंड लोग बिल्कुल दौड़ आए और बोले स्वप्नाली जी एक ऑटोग्राफ हमें दे दीजिए। तो ये सारी दुआओं के साथ स्वप्नाली, वी आर एंडिंग दिस वंडरफुल सेशन विथ यू। हमारी सारी गर्ल्स को आपने बहुत अच्छे टिप्स बताए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से उनके सवालों का जवाब दिया। तो ऑन दिस नोट, दिस इज फरहा अनवर साइनिंग ऑफ, एंड थैंक यू सो मच फॉर सो मच। Yes, thank you so much for inviting me. Bye bye everyone. Bye. Bye.